रे तो लागो कल में साथ रे भाई लागो कल में साथ। इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, अभी अभी हमने मौलाना हाज़िर इमाम का फरमान सुना। फरमान के शुरू में ही मौलाना ने एक चीज़ वाज़ेह की, न सिर्फ इस फरमान में लेकिन कई बार मौलाना ने जमात को यहाँ तक कि जब मौलाना हाज़िर इमाम जमात में विज़िट फरमाते थे, बैतुल ख़याल के मेंबरान को मुलाकात फरमाते थे और उन बच्चों को ख़ास तौर पे जिनको लश्कर कहा जाता है, मौला की फौज में जो शामिल होते हैं, बैतुल ख़याल के इस किले में जो दाखिल होते हैं, उन बच्चों को जिनमें से कई अपने वालदा के गोद में बैठे होते थे, लेकिन वहाँ पर भी मौला फरमाते थे कि देखो आपकी जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। मौला फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है, यानी इनके 100 साल पूरे हो जाते हैं, इनका जिस्म उसी मिट्टी में वापस मिल जाता है जिस मिट्टी से अल्लाह ने इसको बनाया था, लेकिन इंसान की रूह कभी नहीं मरती। इंसान की रूह दायमी है, अमर है, इटर्नल है। न दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो रूह को कभी खत्म कर सकती है। रूह दायमी है, इटर्नल है। तो फिर इंसान जब जिस्म को छोड़ता है तो रूह कहाँ जाती है? आज हम में से किसी को भी ये पूछा जाए कि मरने के बाद आपकी क्या ख्वाहिश है, हम में से हर कोई ये चाहेगा कि हम जब इस दुनिया को छोड़े तो मौला के नूर में एक हो जाए।
ہر کوئی چاہے گا. ہم کیوں مولا کے نور میں ایک ہونا چاہتے ہیں؟ آخر وہ کیا بات ہے جہاں دنیا پوری دنیا کی رنگینیوں میں ہے، یا اپنے جو وسائل ہے کمانے کے اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتے ہیں، وہاں ایسے لوگ صبح اور شام کیوں مولا کو یاد کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کر یہاں ہم کیوں آئے؟ وہ کون سی کشش ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے؟ مولا نے اپنے 48ویں جامع میں امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کئی مرتبہ ہم کو فرمایا، آپ جب اپنے دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے مولا نے ابھی خلاصہ فرمایا فرمان میں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اکوان الصفا کا طریقہ نہیں ہے، یا ایسا طریقہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ترک دنیا کریں گے، دنیا کو چھوڑ کے ہم بیٹھیں گے تبھی ہم خدا کے ساتھ ایک دھیان ہو سکیں گے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا آپ کو اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے فرمایا کہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا، آپ میں روح ہے، آپ روح کو رکھتے ہیں. اسی لیے جب کبھی بھی تھوڑا سا بھی وقت ملے تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر غور کرنا، اپنے آپ پر سوچنا، اپنی روح کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کرنا، پوچھنا اپنے آپ کو میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میرا خالق کون ہے، میرا مخلوق کون ہے، مجھے کہاں واپس جانا ہے. یہ کوسچنز اپنے آپ کو پوچھے. مولا نے فرمایا اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے، کہاں تھے ہم؟ آج وہی چیز ہے جو ہم کو کھینچتی ہے، آج وہی چیز ہے جو ہم میں ایک قسم کا اضطراب پیدا کرتی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے ندی کتنی تیزی سے دوڑتی ہے، کیوں دوڑتی ہے؟ ندی میں اتنی حرارت کیسے ہے، اتنا اضطراب کیسے ہے؟ وہ اپنے اوریجن میں جانا چاہتی ہے، دریا میں ملنا چاہتی، سمندر میں ملنا چاہتی. اور آپ دیکھیں وہی ندی جو تیزی سے دوڑتی ہے، جس میں شور ہے، سمندر میں جاتی ہے. جب سمندر کی سطح پر رہتی ہے تو کچھ وقت تک شور ہوتا ہے، پانی میں پانی مل جاتا ہے، سمندر کی تل تک پانی چلا جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے. یہی حالت ہم مومنین کی ہے. جہاں تھکی تمہیں آویا ہو جیرے ویرا، ویلا تیاں جینے پہنچو، امنے تمنے اے گرے چالنا ہو ویرا چالنا. پھر فرماتے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں جلدی جانے کی کوشش کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا سے ہیں، ہمیں خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے. مومن جب تک خدا کے نور کو سمجھ نہیں پاتا، اس روشنی کو حاصل نہیں کرتا، تب تک اس میں بے چینی رہتی ہے، اشتیاق رہتا ہے. اور جب اس روشنی کو وہ حاصل کر لیتا ہے، اپنی اوریجن کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ شانت ہو جاتا ہے سمندر کی طرح. اسی لیے ہم کو بتایا کہ اپنی اندر جو روح ہے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرے. کیوں ہمیں اتنی گہرائی میں جانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ شروع میں جو گنان کا پاٹھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ستویں موٹی سید
मोहम्मद शाह बिन इमाम शाह, नर मोहम्मद शाह बिन इमाम शाह का लिखा हुआ बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें से एक पाठ जो आज मैं आपके सामने लाई हूँ, इसकी कुछ ऊपर लाइनें होती है, इसके बाद नीचे रेतवी का एक पाठ जो मैंने आपके सामने पेश किया, इसमें हमारी हकीकत को खोला है। शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि लास्ट विजिट में पावर वर्ड के ऊपर वाज हुआ था। यहाँ पर पावर वर्ड क्या है? इमाम की तरफ से हमें जो वर्ड की बख्शीश होती है, मौला मोमिन को चार्ज करके देते हैं। दरमियान में एक बात मैं कहती चलूं, क्योंकि जमात की तरफ से एक बात पूछी गई है, इसका खुलासा भी दरमियान में आ जाए। दिनदारों, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो किसी भी किस्म की मुश्किल से आजाद हो, किसी भी किस्म की। दुनिया में कभी कोई भी तकलीफ आती है तो मोमिन इसको बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करने के कई रास्ते हैं। इसमें से एक रास्ता है मजहब। अगर हम मजहब पर प्रैक्टिस करते हैं, हम जमात खाने आते हैं, मौला की हिदायत के मुताबिक हम चलते हैं, तो याद रखें दुनिया में तकलीफ हर किसी को आती है, लेकिन ऐसे मोमिन जो इमाम के साथ उठते बैठते हैं, मतलब इमाम के फरमान के मुताबिक चलते हैं, इनको ऐसी तकलीफ का एहसास नहीं होता है। अगर कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाए दिनदारों, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इस घर में सुकून के बहुत से रास्ते हैं। मौला के पास से जमात में मुख्तलिफ मौके पर पढ़ने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की तस्बीहात बख्शी गई है। हम जितने मौके पर पढ़ते हैं, सुबह शाम लैलतुल कदर में पढ़ते हैं, शब कदर में, और इसके अलावा कई मौके पर हम तस्बीह पढ़ते हैं। ये सारी तस्बीहात पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्माइली रहते हैं, ये सारी तस्बीहात मौलाना हाजिर इमाम की तरफ से अप्रूव शुदा है। मौला ने इनको मंजूर फरमाए हैं। इसलिए इन तस्बीहात को जब हम पढ़ते हैं तो मौला की दुआएं इन तस्बीहों में शामिल होती है, जो हमारे लिए पावर वर्ड का काम करती है। ये चार्ज होती है तस्बीह। इसलिए कभी किसी भी फर्द, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई मिशनरी हो, किसी के भी पास उनकी दी हुई तस्बीह लेने कभी नहीं जाना। ये तस्बीह देना हाजिर इमाम का सिर्फ हक है। अगर कोई तस्बीह अपनी तरफ से देता है तो ये मौला के हक में खयानत करता है। इसीलिए कभी भी किसी की भी दी हुई तस्बीह नहीं पढ़ना। हमारे पास बहुत सी तस्बीह है, मौला की दी हुई है, सिर्फ उन तस्बीहों को पढ़ना। इस पावर वर्ड का जो खुलासा किया था, इंशाल्लाह आइंदा जो हमारे वाज होंगे इसमें भी हमको बताया जाएगा कि हमें किस तरह मौला के साथ में अपने लिंक को मजबूत करना है। फिर उन्हें फरमाया कि आपके पास खजाना मौजूद है। ये खजाना कैसा है, किस तरह का है? इल्म ईमान जितना कहिए। फरमाते दुनिया में जितना भी इल्म है, जितना भी ईमान है, ये सब के सब फिर फरमाते हैं कि ना इल्म ईमान जितना कहिए, नबी ये सारा जो जिक्र लेना। ये सारा जो इल्म है, जो खजाने हैं, ये पैगंबरों ने भी जिक्र से, एक किस्म के वर्ड से ये हासिल किया है। फरमाते हैं कि खासा खजाना जितना कहिए, सो सब अपनी दिल माहे लइए। जितने भी अच्छे अच्छे खजाने हैं वो सब अपने दिल में मौजूद है। नबी इस बातें करे भोगा, सो सब हुए खजाने जोगा। यही अल्फाज थे जिनके ऊपर सारे हमारे जितने भी नबी आए इन्होंने इबादत बंदगी की, और इन अल्फाज, इन अस्माए हुस्ना
इसमें आजम की बरकत से वो अपने असल की तरफ, अपनी ओरिजिन की तरफ आगे बढ़ते गए, लुत्फ अंदोज होते गए। जिक्र जकीली दिल की कहिए सो सब बात उस माहे लइए। ये सारा जो खजाना है सिर्फ एक चीज में डाला है और वो है जिक्र। लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, खुदा के अच्छे अच्छे नाम है। फदऊहु बिहा, बस उन नामों के जरिया खुदा तक पहुंचे। तो फरमाते कि ये जिक्र जो है यही उस खजाने तक पहुंचने के लिए एक चाबी है। जिक्र जिक्कीली दिल की करिए सो सब बात दिल माहे लइए। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ये खजाना मौजूद है। जिन्हें इस कलमे सु मन चिंत लाया, खासा खजाना उसे खुलता आया। जिन्होंने इस कलमे के साथ में एक चिंत यानी एक ध्यान, एक ख्याल में, कंसंट्रेशन के साथ में वो बैठे हैं तो कहते हैं कि उनको सारा खजाना हासिल हो गया। अब आखिर में फिर इसका खुलासा फरमाते कि दिल में खजीना पर गणा, आपके दिल में खुदावंद ताला ने खजाना रखा हुआ है। अने किली करो तुम हाथ, उसकी चाबी अपने हाथ में कर लो। खजाने तक पहुंचने के लिए जो चाबी है वो क्या है? किली करो तुम हाथ, खोलना चाहो साच सू तो लागो कलमे साथ। अगर सच्चाई से, हकीकत से उस खजाने की चाबी को, ताले को खोलना चाहते हो तो उसकी चाबी आपके हाथ में है। वो मौला का जिक्र है, वो मौला का नाम है। इसीलिए हमको बताया गया, मौला ने फरमाया कि हम जब आपको नाम देते हैं, मौला ने फरमाया ये हमारे नूर का एक लिंक देते हैं, आप एक जरिया देते हैं। मौला ने फरमाया एक सिरा हमारे पास है और दूसरा सिरा मोमिनिन के दिल में है। मौला ने फरमाया कि हम दिया सलाई से, हम माचिस की तिल्ली से उसको जलाते हैं, रोशन करते हैं। और जब आप इबादत बंदगी नहीं करते तो वो दिया बुझ जाता है, वो दिया खत्म हो जाता है। तो ये खुदा के खजाने क्या है? ये हमारी ओरिजिन है, ये हमारी हकीकत है। इसीलिए हमको कहा गया कि आपने कभी अपने आप पर गौर किया है? आपने पूछा है अपनी रूह से कि तू कहां से है? कभी हमको पता चलेगा तो खुद खुदा फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हर बार इस आयत को हम सुनते हैं क्योंकि ये हमारी ओरिजिन है, ये हमारी हकीकत है कि हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, इसके बाद में हमने इनको पस्ती की तरफ उतार दिया, अंधेरे की तरफ उतार दिया। लेकिन हर किसी को नहीं, हर कोई अंधेरे में नहीं चला गया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहात, कुरान में जगह जगह खुदा ने बताया वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, जिन्होंने अपनी शनाख्त हासिल की। जैसे मौला ने फरमाया जुम्मा भगत ने किया था, जैसे मंसूर ने अनल हक कहा। मंसूर कौन था? क्या था वो? एक इंसान, एक सूफी, एक शख्स जब अपने आप को अनल हक, मैं हक हूं कह सकता है, तो वो ऐसा मोमिन जिसको मौला अपने नूर में से एक कतरा देता है कि ये मेरा नाम है। वो नाम क्या है? नाम लेता नामी को पावे, आपा मिटे निज आप समावे। मौला फरमाते कि देखो ये जंजीर है तुम्हारे और मेरे बीच में। एक सिरे पे मोमिन है, दूसरे सिरे पे मौला है। जो जो आप जिक्र करते जाते हो, इबादत बंदगी में आते जाते हो, मौला ने फरमाया ये जंजीर दिन ब दिन छोटी होती जाती है। इसीलिए जुम्मा भगत को मौला ने अफ्रीका में बैतुल ख्याल के मेंबरान को जब मुलाकात दी तो मौला फरमाते कि जुम्मा भगत को फरमाते आप अपनी हकीकत बताओ।
जमात के बीच में, और ये जमात के बीच में ही पूछा जाता था ना, क्या आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने नूर देखा है, हाथ ऊपर करे। जब 4-6 हाथ ऊपर होते थे तो मौला फरमाते थे शर्म की बात है, शर्म की बात है, 50% के तो हाथ ऊपर होने चाहिए। मौला ने फरमाया 4-6 हाथ ऊपर होते थे और पूरी दुनिया में शोर होता था, सबको पता चलता था कि ये इस्माइली जो जीते जी नूर देख चुके। मौला ने फरमाया तेरी हकीकत बता। जुमा भगत अपनी हकीकत बयान करता है, खुदाविन इबादत बंदगी में बैठता हूं तो मेरा दर्जा आपके बराबर समझता हूं, इबादत बंदगी में बैठता हूं तो मेरा दर्जा आपके बराबर समझता हूं। बस करो, मौला ने फरमाया लोग ये नहीं समझ पाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, बस करो। ये हमारी हकीकत, ये हमारी असलियत। मौला ने फरमाया कि कौन थे आप, दुनिया में आने से पहले कहां थे। एक आलम अरवा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम थे, लेकिन वहां जर्रात के छोटे छोटे जर्रे की शक्ल में थे। मौला फरमाते इसमें तो आप जर्रात की शक्ल में आए तब से थे, इसके पहले कहां थे, कहां थे इसके पहले। ला थे पहले, आप कुछ नहीं थे। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छेते तरला ने घास। रूह की डेफिनेशन बताई, हमने इसके ऊपर भी वास सुना है भाइयों, भर में न भूलिए। खुली तरह से पीर ने हमको समझा दिया जिस्म क्या है, रूह क्या है, क्या नी देही नो क्या नो आत्मा, जेनो वार न पार। गंदी देही अशुद्ध छे अने आत्मा छे शुद्ध सार। ये रूह कहाँ का और जिस्म कहाँ का, ये दोनों का बहुत आर्जी रिश्ता है। जब दुनिया छोड़ते हैं तो कहते हैं कि आपका जिस्म गंदा है, मिट्टी में मिल जाता है, और जिस्म जब दुनिया में है जितनी मर्तबा इसको धो करो, कितना भी परफ्यूम डालो, कितना भी खूबसूरती से अपने आप को सजाने की कोशिश करो, थोड़ी देर में वही का वही हो जाता है। क्यों रोज इसको धोना पड़ता है? क्योंकि इसमें गंदा होने की सिफत है। लेकिन रूह पाक चीज है। इसीलिए इसी गिनान के आखिर में पीर सतगुरु नूर ने खुलासा बताया कि आत्मा निर्गुण, निर्गुण कहते हैं जिसमें किसी किस्म की खराबी नहीं, ब्रह्म छे, देही छे ते तरलाने घास। ये हमारी हकीकत है कि इंसान बज़ाहिर जो नजर आता है वो नहीं है, हम रूह है। और इसीलिए मौला ने फरमाया कि जर्रात में उसी रूहानी दुनिया की बात मौला फरमाते हैं, क्योंकि आज हम इस रूहानी दुनिया में बैठे, मौला के घर में, हम बैतुल ख्याल के घर में बैठे, जहाँ हम रूह की बात करते हैं। मौला ने फरमाया कि उससे भी पहले आप ला थे, यानी निरंजन निराकार जो गिनानों में फरमाया गया है, वो हमारी सिफत थी, वो हमारी सिफत थी। वहां से निकालकर हमको इस जिस्म में डाला। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, आदम आद निरंजन निर्गुण आपे अरूप। हमारी ओरिजिन हमको बताई गई, हम कौन थे, आदम से पहले हम क्या थे, वही निरंजन निराकार खुदावन ताला के नूर में थे। वहां से जब हमको अजसाम में डाला गया तो फिर हम अलग अलग होके दुनिया में आ गए। तो इंसान की ये हकीकत है, रूहानियत का ये सारा खजाना, रूहानियत का ये सारा इल्म जो हमारी हकीकत है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक जाना है, इसको अगर मालूम करना है तो इसके लिए एक हमें वर्ड दिया गया है, एक नाम। अगर हमारे पास इसमें आज़म नहीं है, मौला के नामों में से, मौला की दी हुई तस्बीहों में से जो भी वर्ड हमको अच्छा लगे, सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस करते रहे, मौला की जब मेहरबानी होगी तो मौला के पास हम जाएंगे तो हम तैयार होंगे कि हम इसमें आज़म की बख्शिश को ले और हम
आगे बढ़े। तो पीर हमको फरमाते कि इस खजाने को हासिल करने के लिए जो चाबी है वो मौला का नाम है। और जब मौला के नाम से एक मोमिन थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि हम दुनिया में बहुत कुछ कर चुके हैं, अब थोड़ा सा तजर्बा ये करे, हम जमात खाने सुबह आते हो या शाम आते हो, इबादत बंदगी दुआ के सारे औकात जो मौला की तरफ से को मिले हैं, इसके अलावा भी ज्यादा नहीं तो रोजाना आदत करे सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट दुनिया का सारा कारोबार बंद करे, हो सके तो अपने टेलीफोन को भी ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए। आप कोशिश करें दीनदारों, एक लुत्फ आएगा, जिंदगी में एक चेंज आएगा, हमको मजा आएगा। क्योंकि हम जब यहाँ से जाएंगे तो पीर ने कितनी अच्छी तरह हमको बताया है कि कोठा मंडप माड़ियो घर घोड़ा ने भंडार के न नया 5 से 11 जीव चलन त्योहार। जब रूह चली जाएगी तो हमारे जिस्म के साथ में कोई नहीं आएगा, रूह अकेली ऊपर चली जाएगी और जिस्म उसी मिट्टी में चला जाएगा। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हमको करना है मौला हमको मना नहीं फरमाते, लेकिन इतने मसरूफियात के बावजूद एक 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाले दीनदारों, सिर्फ अपने लिए, अपने आप पर गौर करे, पता चलेगा कि वही चीज जो खुदावंद ताला का नूर है हम हर एक में है। और जब हम ऐसे अंदर डीप में जाएंगे तो मालूम होगा कि ये बहुत खजाना हम में भरा हुआ है और उस खजाने से हम काफी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बहुत ही खामोशी से आपने सुना है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखें, गज जमात का ईमान सलामत रखें, हकीकी समझ अता करें, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करें। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला